A very warm welcome to Rajya Sabha TV, where we are getting you non-stop updates on the Bihar verdict. It's 3 p.m. right now. These are the headlines at the top of this hour. JDU-led Grand Alliance puts up a stunning performance. Coalition secures thumping majority in Bihar. Nitish Kumar set for a hat-trick of terms. NDA accepts defeat but surprised at the margin of defeat. But BJP dismisses suggestions that Prime Minister Narendra Modi's appeal is on the wane. Results indicate resounding comeback for Lalu Prasad's RJD. Figures indicate that RJD could emerge as the single largest party. Congress terms Grand Alliance's resounding win as a victory of unity over BJP's divisive politics. Party Vice President Rahul Gandhi urges Prime Minister Modi to shun arrogance. And Shiv Sena calls Nitish Kumar the new hero of national politics. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee sees it as a victory of tolerance over intolerance. Well, so the big story this Sunday, the Nitish-Lalu Congress alliance is set to form the government in Bihar. In the counting of votes for the Bihar election so far, it's been a strong tilt towards the JDU-RJD Congress Mahagathbandhan. A complete turnaround from the initial signs of an NDA lead. By 10 a.m., celebrations were underway at offices of the JDU and RJD in Patna as it became increasingly clear that Nitish Kumar is set to become the chief minister for a third term. For the Grand Alliance, most of their sitting ministers are leading in their respective constituencies. Congratulatory messages have been pouring in. Prime Minister Narendra Modi, UPA Chairperson Sonia Gandhi, UP Chief Minister Akhilesh Yadav, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee were among those who sent in their congratulatory messages to Nitish Kumar and Lalu Prasad. Meanwhile, political reactions have been pouring in from Patna as well as Delhi. Let's listen. मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये लड़ाई बहुत विकट लड़ाई थी। एक तरफ मनी बैग था और एक तरफ जो है वो नीति और सिद्धांत की लड़ाई थी। ये सीधी लड़ाई थी और उसमें मैं मानता हूं कि हमको 150 के करीब संख्या मिलना चाहिए। जो भी रुझान आ रहे हैं ये संतोषजनक है, क्योंकि जो रीजन वाइज खुल रहा है, फेज वाइज खुल रहा है, उससे भी कुछ हम लोग को आकलन मिलता है और आकलन ये अच्छा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एरिया को होल्ड करी हुई है। हमें अंतिम परिणाम आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और हमें विश्वास है कि अंततः चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। थोड़ा बहुत अगर उनके साथ कोई सीट आ रहे हैं तो नीतीश के थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये जो है ये धक्का वहीं पर लगा हुआ है जब लालू जी के एक बेटे ट्रेल कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा विजय है। नीतीश कुमार राजनीतिक महानायक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। All right, so joining us at the moment are our correspondents Akhilesh Suman from the JDU office, Shyam Sundar from the BJP office and senior journalist Nikhil Anand straight from Patna. Coming to you, Shyam, first. It's this time the BJP, of course, failed to turn the tide in Bihar. Do you think it's a personal setback for President Amit Shah? Well, it is a big defeat for BJP, Tina, and Prime Minister Narendra Modi himself was leading the campaign in Bihar. He held more than 20 public rallies there, big public rallies there, and Mr. Amit Shah, he was camping in Bihar, he was supervising the whole campaign, and of course it's a big loss of face for both these leaders. And we have seen in BJP office after 10 o'clock, all senior spokesperson, they left office, only junior spokesperson were here to talk to the media, and we heard that Amit Shah has congratulated Nitish Kumar over phone, but there is no official press statement or press conference by Mr. Amit Shah. He didn't come to office
office at all, though he met some senior leaders of BJP at his residence, and there are news that tomorrow there will be a parliamentary board meeting, but what time that meeting will take place, time is not known yet. So it is clearly a big defeat for BJP and a loss of face for the Shyam, leadership we'll come back to you in just a BJP. bit. We'll come back to you in just a bit. Meanwhile, we're getting you visuals of Nitish Kumar, who is now meeting the people in Patna there. Coming back to you, Shyam. So as we were saying, the calculations this time for the BJP went wrong. In fact, in the morning when the initial trend started to come in, the BJP, of course, took a lead initially. And we also heard reports that crackers went out at the BJP headquarters, BJP office in Patna. So where do you think the BJP missed out? Where did it go wrong in the calculations? Well, as far as calculation is concerned, in counting, on the counting day, first, generally postal ballots are counted, and in first round, generally in postal ballots, we have seen in every election that BJP gains some kind of lead, and there may be urban counting centers from where BJP was getting some lead. So, of course, there was encouraging indications in the morning, but by 9 o'clock things were reversed, and then Mahagathbandhan, the Grand Alliance led by JDU, started getting edge over BJP, and end of the day, Grand Alliance got clear majority, and BJP got a big defeat. And we have seen during the campaign also, after the first phase itself, BJP leaders were nervous, and the kind of campaign, the kind of slogans BJP leadership was giving in the elections, it was very, very clear that BJP was nervous after first phase of election itself, and it didn't work out for them. They tried many things, but it didn't work for the BJP at all in the Bihar election. Certainly. So time for the BJP, I think, to revise its strategy, because after the Delhi drubbing, this was the second in a row. Meanwhile, let's go across to our correspondent Akhilesh, who's there at the JDU office. Akhilesh, just a few moments back, we heard Sharad Yadav say that the comment from RSS chief Mohan Bhagwat regarding reservation was something that backfired at the BJP. Do you think that was the key where BJP lost track in Bihar? Actually, Tina, it is not only Mohan Bhagwat's statement, it is also the incidents like Dadri, the incidents like this communal, trying to communalize the whole politics, the question of Pakistan, crackers in Pakistan. This has annoyed the people of Bihar, who were trying to understand that after Prime Minister Narendra Modi has become the head executive of the country, will take the country on the development path. But the type of comments were coming from the BJP leaders and the type of incidences were going, that people of Bihar were greatly annoyed, and they had in the past seen for last 10 years in Nitish Kumar regime, at least there was a steady, peaceful development in the whole state. Right. There were roads were being made, the electricity were going to the houses of the people, the empowerment of women in the local self-government, and also the cycle of the girl students. These were showing that Nitish Kumar is really interested in the development from the ground. And on the contrast, BJP was just promising the money, the package, but nothing has come in the last 1.5 years. So I think that people of Bihar has understood that it is better to go with the tested person rather than going and hug the people whom we don't know. So I think this is the factor that ensured the victory of Nitish Kumar and Lalu Yadav alliance. And also in the Lalu Yadav whole regime, there were no caste riots. The people of Bihar know that how
far Lalu Yadav can go, and there was no other way that Lalu can go more than that, because the OBCs have also tasted the fruit of development. Entrepreneurship has developed in OBC people. They have got money and they also want to go on the development path. So Nitish and Lalu combined has ensured confidence in both the OBC and also in the general caste, and this is has ensured the victory of both the Grand Alliance company. Right, Akhilesh. Many thanks for joining us with those details. Meanwhile, now let's go across to senior journalist Nikhil Anand, who's joining us from Patna. Nikhil, now after the Bihar results, it's going to have a larger impact on the national elections, of course. The next time in 2019, Narendra Modi is going to have competition, as a lot of experts have pointed out, maybe from the Grand Alliance that makes an advent at the national politics. What is your take on this? Do you think the Grand Alliance will come on the national front very soon? Yeah, of course, I agree that just because this election was simply an election between a Prime Minister and the Chief Minister, and here there was a big question doing round in Bihar that will the Prime Minister defeat the Chief Minister, and here the Chief Minister has proved himself, his credentials and his work done for the people of Bihar, and now the aspiration is very clear that Nitish Kumar is appreciated by a hell lot of people all over the country. And Lalu has, a day back, he has said that now his aspiration goes beyond the boundary of Bihar. He has just revealed his plan to go to Banaras, then he would like to go to Kolkata. So you see that this defeat of BJP has created a kind of excitement among the Congress and UPA circle, and now that the notion that Amit Shah and Narendra Modi duo, the combination is not defeatable and is very with a proven record, this has their reputation has been dented very badly. This election simply, it was really a matter of surprise that we have seen all sorts of debate, low-level debate, and not only Lalu Prasad Yadav and other leaders like Giriraj Singh and all contributed, but here the Prime Minister of this country, Mr. Narendra Modi, also contributed in lowering the level of debate in this election, and it all backfired. There was a big question that if this kind of mega campaign and 26-30 rallies by a Prime Minister in a state election, will it click or backfire? And now we have seen that how it has backfired and miserably. So I see that Nitish Kumar was continuously campaigning on a development front, and he will recite to people that what he has done in the last 10 years. And entirely whenever Narendra Modi asked questions about Nitish Kumar, they were having an apprehension. They were not in a position to attack Nitish Kumar. They entirely attacked Lalu Prasad Yadav, calling him the hero of Jungle Raj. But I see now, I perceive after this result that Jungle Raj connotation was not perceived by people of Bihar against Lalu only, but it was perceived as a attack against the Yadav community as well as the subaltern, EBC and Dalits as well. Just because all the people BJP hired as a fill gap for their social combination, like Ram Vilas Paswan, Upendra Kushwaha and Jitan Ram Manjhi, they all have failed miserably. And now the question, the people of Bihar has reposed faith on Nitish Kumar, that they are not only with a slim margin, but this huge margin, they have reposed faith that they want to go with Nitish Kumar. Certainly. Mr. Anand, do stay with us. We'll come back to you in just a bit. Meanwhile, there's gloom on the other side. Gloom for the BJP-led NDA alliance that struggled to reach even the 70 mark. Though the BJP has led in nearly 50 seats, its alliance partners, the LJP, the HAM and RLSP, have barely made it to double digits. As expected, it was silence and signals of a quiet Diwali at the BJP headquarters as party leaders conceded defeat, calling this election a learning curve. राजनीतिक पार्टियां पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में थी। पूरी ताकत के साथ हमने लोगों से जनादेश के लिए अपील की
अब जो भी जनादेश आएगा वो सरमाथे पर। And political reactions, of course, have been coming in from all across Delhi as well as Patna, both from the BJP, the NDA, and the Mahagathbandhan leaders. Let's listen. हमने जो निर्णय लिए हैं वो वहां पर या प्रयोग जो किए हैं वो कैसे सफल नहीं हो पाया, जिसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नेतृत्व को अभी तय नहीं किया, कोई फेस नहीं रहा। Narendra Modi ji criticized in a bad language, in a bad taste, Nitish Kumar and Lalu Prasad and all that people have rejected these allegations against this government. So ultimately people have accepted the secular parties, the leadership of Nitish Kumar and the leadership of Lalu Prasad Yadav. So after the huge setback, the BJP's parliamentary board is likely to meet on Monday to analyze the poll results in Bihar after the JDU alliance gave it a shock defeat. PTI court sources saying the board is likely to examine all the aspects and factors leading to the party's below-par performance against the Nitish Kumar-led Grand Alliance. Party leader and Union Minister Ram Kripal Yadav said it was for the top brass to analyze and introspect the reasons behind these results. Going back to Mr. Anand now. Mr. Anand, I know this question has been put up a lot of times, even when, there was drubbing in Delhi for the BJP. But again, after the results today in Bihar, which was very crucial for Narendra Modi, do you think finally that the Modi wave has subsided in the country? Yeah, because after Narendra Modi took over the charge as Prime Minister of this country, in last 15-16 months, nothing big has been done which will excite the masses. And here in Bihar, the price rise was a big issue, and it was simply not properly. It came to the ears of BJP leaders, but BJP leaders were entirely, they were campaigning on non-issues. They did not even presented their vision or anything like Scooty and some other things were presented by Sushil Kumar Modi. But Nitish Kumar presented his 7-point vision, and Nitish Kumar, we have seen at the ground level that how the women voters were entirely voting for Nitish Kumar, the EBCs and Dalits, the work Nitish Kumar has done in the last 10 years. Meanwhile, visuals coming in from Patna. You can see RJD President Lalu Prasad at the party headquarters. Know that the RJD has made a brilliant comeback in Bihar after a long decade. Back in 2005, the Nitish Kumar's JDU, in alliance with the BJP, had defeated Lalu Prasad and ousted him from power after 15 long years. Now the RJD president himself not contesting, but making a resounding victory in the state out there. Mr. Anand, now, coming to the Congress, it's good news for the Congress party after a long time. In Bihar, they've reached double digits. Do you think it's time when they, recollect after 18 months, good news for them? So when they face the voters in UP and Punjab, they'll be quite confident having learnt from Bihar? Yeah, of course. Congress in this whole election and the result, outcome, Congress has many reasons to feel really very, very happy, because after a long time they have reached 20+ mark. Right. And you see that the way Rahul Gandhi has reacted after the election, it seems that this alliance which has succeeded in Bihar, the
the scope for this alliance to go beyond the boundary of Bihar is open now. And I see one point that BJP, which won 91 seats in earlier election by contesting on 102 seats, they have won below, they could not even repeat their earlier performance even. So now Nitish Kumar and JDU has a reason to say that all the performance of BJP which was visible in last time, it was because of Nitish Kumar. So BJP has many reasons to feel really very unhappy, and now we see that BJP is really, it is a big setback for BJP because it was a huge campaign with big money, and there is an estimation that 1,000 crore and so has been invested, pumped into Bihar with several union ministers, more than half of the union ministers of India. They were continuously staying in Patna and monitoring the whole affairs, like other leaders of RSS and like Kailash Vijayvargiya and all. They were constantly looking after the different constituencies and performances. And besides all, if BJP could not read the mood of the masses, it's a complete failure for a party which claims to be the party with a difference and a national party. And so it's a big setback for really BJP, Narendra Modi, Amit Shah, and all the whole BJP cadre. Yeah. And in fact, because we just spoke about Congress, the party vice president earlier in the day reacted sharply to the BJP's defeat, saying that it's a vote against the divisiveness, the divisive policy of the BJP. He also had a word of caution for the Prime Minister, telling him to realize the promises that he made to the country during the 2014 Lok Sabha elections. Listen in. पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। And the big takeaway from the election results is that Lalu Yadav's RJD has made a resounding comeback into state politics. The party has left its string of losses beginning with the 2005 assembly elections to 2010 assembly polls and then the 2014 general elections behind. The latest data shows that the RJD is emerging the clear leader within the Grand Alliance itself. The comeback is emphatic, considering that it comes in the back of several electoral losses. The string of defeats began in the 2005 assembly polls when his party was ousted from power after 15 years. He was pushed to the margins after the 2010 assembly elections when the NDA under incumbent Chief Minister Nitish Kumar won a 4/5 majority in the 243-member assembly, winning 206 seats and restricting RJD to a paltry 22. Lalu's conviction in a fodder scam case in 2013 came as a personal blow to him, as it led to his immediate disqualification from the Lok Sabha and a ban from contesting an election at least for 6 years. The 2014 Lok Sabha election results came as another jolt to the RJD and Lalu, with the party managing to win only 4 of the state's 40 seats. And after the JDU parted ways with the BJP, Lalu joined hands with friend-turned-foe Nitish Kumar to fight the Bihar Assembly elections. The Grand Alliance fought the bitterly fought Bihar polls, projecting Nitish Kumar as the Chief Minister. And well, as you can see on the visuals being played out on the screen, Nitish Kumar and Lalu Yadav meeting each other after that resounding victory in Bihar. Two big winners from the Bihar Assembly polls today meeting, and now they'll be making a statement to the media.
शांति, शांत रहो। सभी आप लोगों के शांत रहो। क्या कर रहा, क्या कर रहा? बिहार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट और कंटिन्यू अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी मीडिया के साथीगण, महागठबंधन का जो ग्रेट विक्ट्री दिया है बिहार की जनता ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अकलियत के लोगों ने और उच्च जात के भाइयों ने भी गरीब लोगों ने दिया। इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा का बिहार की महान जनता ने, भाजपा का बिहार की जनता ने सुफरा साफ कर दिया और नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। और साथ ही साथ नौजवान हमारे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वंचित समाज है, अंतिम पावदान पर जो बैठा समाज है, उनको मुख्य धारा में लाएंगे और बिहार के हक और हुकूम के लिए पूरा परिश्रम हम करेंगे। और चुनाव के दौरान हमने ऐलान किया था कि देश हित में भाजपा को दिल्ली के गद्दी पर एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। इसलिए जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। जो हमने कमिट किया है, या नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलके पूरा देशवासियों को, मैं जो सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम फ्री रहेंगे और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कमनल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बिहार ने नया राह दिखाया है। मीडिया के सब साथियों को, जो भी आप लोगों ने सर्वेक्षण किया, मेरा सर्वेक्षण सही निकला, हम अप्रोचिंग तक पहुंच गए हैं। हमारा सर्वेक्षण राइट और बाकी का सबका फेल। और नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद और सब कार्यकर्ता को यूनाइटेड। देखो भाई, कोई आरजेडी, जदयू, कांग्रेस पार्टी नहीं थी, महागठबंधन जिंदाबाद लोगों ने नारा लगाया। जो एकजुटता दिखाई है, हम लोगों में कोई भी चाहेगा कि कोई फूट फाट करावे, आगे पीछे करें, हम लोग 10 से मत हिलने वाले नहीं हैं। जब हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, धूपा में खड़ा होकर, त्योहारों को त्याग करके, बिहार की जनता ने, नौजवानों ने, पिछड़े वर्गों के लोगों ने, अकलियत के भाइयों ने, दलित, महादलित, आदिवासी और उच्च जात के गरीब भाई लोग भी दिए। आज जिस अखबार को कुछ बोले भी तो हम वापस ले लेते हैं। आपने फोन करके हमारी महिलाएं, हमारी माँ
माँ बहनें, गरीब महिलाओं ने जो प्रदर्शन दिखाया, जो एकजुटता दिखाया महिलाओं ने, दबे कुचले वर्गों की महिलाओं ने, मिडिल क्लास के महिलाओं ने, उनके अरमानों का बिहार, उनके अरमानों को हम भारत बनाने में हम लोग पूरा का पूरा योगदान देंगे। आप लोग को बहुत धन्यवाद। देखो भाई देखो लड़का सब लोगों देखिए क्या पूछ रहा। हाँ बात सुनो। देखो मुख्यमंत्री जी को नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बधाई दिया, बहुत अच्छी बात है। और देश भर के सब नेताओं ने इन स्पाइट ऑफ पार्टी पौआ सब लोग हम लोग को बधाई दिए। सोनिया जी, उनका पूरा परिवार, इनको भी दिए, जेटली जी दिए, राजनाथ भाई दिए, सब लोग तो दे ही रहे हैं। लेकिन हम आज के अवसर पर जो देश का हमारा इशू है, जो हमारा सवाल है, बधाई हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना लड़ाई को चौक और तेज करते रहेंगे। हम इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा दूरगामी कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। इतना बड़ा दूरगामी असर पड़ने जा रहा है। इसमें मोदी जी का सरकार, आरएसएस सरकार बिल्कुल धराशाही हो जाएगी। 2019 में ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में टक्कर देंगे मोदी जी। 2019 आप 19 में चले गए। सबसे पहले भाई सुनो, अरे सुनिए ना, 10 दिन के बाद हम बनारस जाएंगे लालटेन लेके। हाँ, छठ के बाद लालटेन लेके बनारस जाएंगे। फिर क्या क्या वादा किया था, अब क्या कर रहे हो? अरे बाकी 4 बजे दिल्ली जी के घर पर आएंगे, वहाँ पीसी होगा। तो पटना से आप तस्वीरें देख रहे थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार प्रेस से मुखातिब हुए और ये पहला संबोधन था उनका जीतने के बाद, और जाहिर तौर पर बहुत सारे इशारे उन्होंने कर दिए हैं अपने आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से वो अब आगे इस दिशा को लेकर जाएंगे, किस दिशा में अब बिहार की राजनीति जाएगी और खासतौर से महागठबंधन की राजनीति जाएगी, और वो उन्होंने कुछ साफ किया। केंद्र के खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे लालू प्रसाद यादव, ये उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि बधाई हम जरूर स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री की, लेकिन जो लड़ाई है उनके खिलाफ वो जारी रखेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद वो पहुंचेंगे बनारस, जहां पर वो प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उसका हिसाब लेंगे। बहरहाल 4 बजे नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनके घर से, उस वक्त और कुछ बातें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल हम कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन की आंधी एक तरह से आई है। 2/3 बहुमत के साथ नीतीश कुमार की हैट्रिक लगी है। ये तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस पर एक नजर। बिहार में महागठबंधन की आंधी, 2/3 बहुमत के साथ नीतीश कुमार की हैट्रिक, जनता को दिया जीत का श्रेय। बिहार में नहीं चला मोदी मैजिक, 60 के अंदर सिमटा एनडीए, अमित शाह ने कहा जनादेश मंजूर। महागठबंधन की जीत पर राहुल गांधी का बयान, कहा बीजेपी आरएसएस विचारधारा को जनता ने नकारा, वाम दलों ने धर्मनिरपेक्षता की बताई जीत। पटना से लेकर दिल्ली तक महागठबंधन कार्यकर्ताओं की दिवाली, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस दफ्तरों में जश्न का माहौल, बिहार में लगे नए पोस्टर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतीश को जीत की बधाई। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और शिवसेना ने कहा विकास की हुई जीत। जी हां, तो बिहार की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी को तैयार हैं। नीतीश और लालू की जोड़ी ने बिहार में जोरदार सफलता हासिल की। दोनों पुराने राजनीतिक साथी एक दूसरे को मजबूत बनाने में सफल हुए। महागठबंधन को कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिली है। पूर्वी बिहार यानी अंग प्रदेश वाले हिस्से में भी महागठबंधन का जादू चला है। मगध क्षेत्र में भी महागठबंधन अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहा। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर नीतीश कुमार को बधाई दी। वहीं नीतीश और लालू ने जीत के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। महागठबंधन के खेमे में जश्न का माहौल है तो एनडीए में मायूसी छाई हुई है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार प्रेस से मुखातिब हुए। बहुत बड़ी जीत है ये महागठबंधन के लिए। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है जब किसी प्रदेश के दो धुर विरोधी राजनीतिक शख्सियतें एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़े साथ में और उस गठबंधन का फायदा मिला। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी रंग लाई और नतीजा सबके सामने है। नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन एक बार फिर नीतीश कुमार और अब से कुछ देर पहले जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि निवर्तमान मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री दोनों कहकर संबोधित किया, यानी कि जो थोड़ा बहुत कयासबाजी भी हो रही थी कि क्या जीत के बाद दोनों की दोस्ती टिक पाएगी, क्या कोई वैचारिक मतभेद सामने आएंगे। लेकिन ये जो अभी कुछ देर पहले जो प्रेस से मुखातिब हुए हैं दोनों शख्सियतें, उन तमाम आशंकाओं पर एक तरह से विराम लग गया है। और जिस तरह से गले मिले हैं, याद कीजिए वो तस्वीर जब महागठबंधन का ऐलान हुआ था, कुछ इसी तरह से गले मिलकर महागठबंधन का ऐलान किया था। और आज फिर उसी तरह से उसी जोश के साथ दोनों नेता मिले। और विकास के मुद्दे से वो खुद ही भटक गए। हमेशा वो जादू टोना, तंत्र मंत्र और इस तरह की भाषा, जो उनके सभा में जो भीड़ जाती थी वो जनता अपने लिए सुनने जाती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जनता के लिए क्या करेंगे, वो महंगाई पे क्या बोल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे क्या बोल रहे हैं, वो और जो बिहार के और नौजवान के रोजगार के लिए वो क्या करेंगे, तो ये सुनने जाती थी। लेकिन मीडिया ने उसको दिखाया कि प्रधानमंत्री जी की सभा में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो भीड़ कभी भी जीत का पैमाना नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, किस एक चीज को सबसे बड़ा श्रेय देंगे आपकी जीत? देखिए, मैं बिहार की जनता को देती हूँ कि इतने सारे, चाहे वो एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे बैठा था, सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं, जहाँ भाजपा शासित राज्य जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर से लेके उनके मंत्री तक यहाँ पे बैठे थे, यहाँ तक कि फिल्म स्टारों को भी उपयोग में लाया गया। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी जमात को देख लिया और कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता का जीत है। सीएम तो तय है, डेप्यूटी सीएम कौन होंगे? देखिए, ये कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी तो आज रिजल्ट आया है और सीएम पहले से भी हमारे तय हैं। तो नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन जो डिप्टी सीएम का जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, इसमें हमारे जो नेता हैं वो मिल बैठ करके आपस में तय कर लेंगे कि इसका क्या रोल होगा। तो महागठबंधन के नेता आपस में मिल बैठकर ये तय करेंगे कि बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी खेमे से लालू प्रसाद यादव के बेटे को शायद डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मीडिया में इसी तरह के कयास सामने आए थे, लेकिन मीसा भारती ने यह साफ कर दिया कि इस पर फैसला विचार मंथन के बाद होगा। दोनों या जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के, उनमें आपसी सहमति के बाद ही किया जाएगा। लेकिन लगभग ये साफ ही हो चला है कि डिप्टी सीएम का पद आरजेडी के खेमे में जा सकता है। बहरहाल ये वो तस्वीरें जब कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मुखातिब हुए प्रेस से। इस वक्त हम चलेंगे हमारे संवाददाता अनु दीवान के पास। जेडीयू ऑफिस में इस वक्त वो मौजूद हैं। अनु,
अब से कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारी बातें कही हैं और उत्साह जो एक दिखता है जीत के बाद का वो साफ तौर पर नजर आया। आप जेडीयू के ऑफिस में हैं, वहां किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? जी दीपक, बिल्कुल जैसे सुबह से हम जेडीयू ऑफिस में बने हुए थे, यहाँ पे जैसे ही जीत का ऐलान हो रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे कार्यकर्ता जुटते गए। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही जितने भी कार्यकर्ता थे वो अपने जो नेता हैं शरद यादव, उनके घर चले गए। यहाँ पे जिस तरह जेडीयू ऑफिस में उन्होंने अपना उत्साह दिखाया, पूरी की जंतर मंतर की जो सड़क थी वहाँ पे पटाखे फोड़े गए, आपस में मिठाइयाँ खिलाई गई और जितने लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जंतर मंतर एक जगह है जहाँ पे अक्सर लोग किसी न किसी बात पे अपने मुद्दों को लेकर धरना आते हैं, उनके साथ भी उन्होंने अपनी खुशी बांटी। लेकिन उसके बाद ही जो है ये लोग सारे के सारे जितने कार्यकर्ता थे वो शरद यादव के यहाँ चले गए और अब वो शरद यादव के घर पर अपना जश्न मना रहे हैं। और अनु, आपकी बात हुई होगी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, किन किन चीजों पर फोकस रख रहे हैं वो? क्या आपसे बातचीत हो पाई? किन बातों को वो श्रेय देते हैं इस जीत का? जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता थे और जितने भी यहाँ पे नेता लोग मौजूद थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और हमने उनसे पूछा कि अगर आप ये जीत का श्रेय देते हैं तो किन चीज़ों पर देते हैं। उन्होंने हमें सीधे तरीके से, जिस तरह जेडीयू ने कहा कि उन्होंने जो अपनी आज ये जो जीत हासिल हुई है वो 2 मुद्दों पे हुई है। विकास की बात तो हर कोई कर रहा था, लेकिन विकास के साथ साथ शांति जो थी एक बड़ा मुद्दा थी, जो उनकी जीत के लिए इस बार ये साबित हुई है। जिस तरह से पिछले चुनावों में, जो बिहार चुनाव जब से शुरू हुए थे तब से जो देश भर में हो रहा था, चाहे वो दादरी का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, जिससे ये बिहार के इस मुद्दे पे शांति और विकास, ये 2 चीजें थी जो इनके लिए, महागठबंधन के लिए काम आई और उनको आज जीत हासिल हुई। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता स्मृति रस्तोगी भी जुड़ गई हैं बीजेपी दफ्तर से, उनका रुख करते हैं। स्मृति, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए, आज दिन भर आप वहां थी, किस तरह का रिएक्शन था? वो मायूसी तो हम महसूस कर रहे हैं यहाँ से भी बीजेपी खेमे में तस्वीरों के जरिए, लेकिन आप वहां पर प्रत्यक्ष मौजूद थी, किस तरह का रिएक्शन था, क्या अनुभव रहा आपका? दीपक, पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे दिन की शुरुआत हुई, सुबह सारे जो वरिष्ठ नेता थे उनका जो उत्साह था, सेलिब्रेटरी मूड था पूरे ही भाजपा के लीडर्स में। मगर जैसे जैसे रुझान सामने आने लगे, रिजल्ट्स डिक्लेयर होने लगे और दिन ढलने लगा, वैसे वैसे जो वरिष्ठ नेता थे वो भी धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे। आप सही कह रहे हैं कि मायूसी का माहौल तो है यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़े गैप से, काफी बड़े मार्जिन से ये हार दर्ज हुई है। और मेरा मानना है कि इंट्रोस्पेक्शन हो रहा होगा कि कहाँ ऐसी भूल हो गई, कहाँ ऐसी चूक हो गई। आप अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या आप तस्वीरें दिखा सकती हैं बीजेपी दफ्तर में इस वक्त किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि पैन करके आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये खाली वीरान बिल्कुल ये ऑफिस दफ्तर पड़ा हुआ है इस वक्त, और कैसे हम देख सकते हैं कि कोई बड़ा नेता इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। मगर मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत जरूरी है इस वक्त भाजपा के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना, क्योंकि साल की शुरुआत भी नहीं अच्छी हुई थी दिल्ली इलेक्शंस के साथ, और साल का अंत भी जो एंड हो रहा है वो भी कोई बहुत अच्छी नोट पे नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी 2 हारों का सामना करना पड़ा उन्हें। लेकिन मगर जिस तरह से यूपी इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन सामने है तो हाँ स्मृति, लेकिन जिस तरह से तैयारी वहां पर की गई थी, प्रेस गैलरी वहां पर हम देख रहे हैं बाकायदा बनाई गई है, चैम्बर्स बनाए गए हैं प्रवक्ताओं के लिए अलग अलग, लग नहीं रहा है कि बीजेपी इस इतनी बड़ी हार के लिए तैयार थी? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने बोला कि बहुत सेलिब्रेटरी मूड था, उत्साह था, लीडर्स में बहुत जुनून था, एवरीबडी वाज कॉन्फिडेंट कि हम ये इलेक्शंस जीत जाएंगे। मगर जैसे जैसे रुझान सामने आने लगे, एकदम से एक मायूसी का माहौल, एकदम से एक हार का एक्सेप्टेंस उनके अंदर दिखने को मिला, और फिर धीरे धीरे देखा हमने कि कोई भी लीडर यहाँ पे मौजूद नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको 2 जगह की हमने तस्वीरें दिखाई, एक तरफ जेडीयू दफ्तर जहां पर जश्न का माहौल था, हालांकि अब तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वो अब शरद यादव के घर पर सारे कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हो गए हैं, वो वहां से चले गए हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर देखी आपने बीजेपी दफ्तर की देखी, तैयारियां बहुत की गई थी बीजेपी दफ्तर में, जाहिर तौर पर इतना बड़ा सेटबैक जो बीजेपी को हुआ है वो उसका अनुमान शायद बीजेपी को नहीं था।
और इस वक्त हम अपने संवाददाता नवविक्रम सिंह का रुख करेंगे जो कि आरजेडी दफ्तर में मौजूद हैं। विक्रम, आप आरजेडी दफ्तर में हैं, क्या नेताओं से बातचीत हो पाई? सरकार कैसे चलेगी? गठबंधन के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या इस बारे में कोई इनपुट्स आपको मिल पाए? जी दीपक, वैसे तो यहाँ पर फिलहाल अभी कोई आला नेता मौजूद नहीं है आरजेडी के, लेकिन जो कार्यकर्ताओं से बात हुई, जो बाकी नेताओं से बात हुई यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि जो नीतीश और लालू का गठबंधन है, ये गठबंधन अब बिहार से आगे चलकर बाकी राज्यों में भी जाएगा। और अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लालू यादव का जो बयान था कि दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अभी जो दिल्ली में माहौल है, दिल्ली में प्रदेश स्तर पर पार्टी के काडर को बढ़ाने की कोशिश है और इसके अलावा बाकी राज्यों में भी कोशिश की जाएगी। और फिलहाल आज जश्न का माहौल है पूरी तरीके से आरजेडी ऑफिस में, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई है। जेडीयू की बात करें, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार लंबे अरसे से सत्ता के साथ रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लिए ये आज बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि बीते कई सालों से आरजेडी के पास अपना जो वोट बैंक था, जो उनके समर्थक थे, लगातार हटते जा रहे थे। हमने पिछले चुनावों में देखा कि 22 सीटों पर सिमट गई थी आरजेडी। जी दीपक, कुछ तस्वीरों के जरिए आप बता पाएंगे वहां पर किस तरह का माहौल है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक कि अभी यहां से भी कुछ लोग, कुछ क्या सभी लोग शरद यादव के घर की तरफ रवाना हुए हैं। लेकिन मैं तस्वीरों में अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि जो आतिशबाजी है यहाँ, अभी थोड़ी देर पहले आतिशबाजी थी, यहाँ कुछ रंग थे, अभी उसके जो पटाखे जलाए गए थे वो बाकी है। बाकी यहाँ से काफी लोग जो हैं वो रवाना हो चुके हैं शरद यादव के घर। और इसके अलावा रंग का माहौल था, होली खेली गई। दिवाली से पहले जो दिवाली आई है वो जेडीयू और आरजेडी के ऑफिस में आई है। जी शुक्रिया नवविक्रम हमसे बातचीत करने के लिए। अब चलते हैं पटना, जहां से वरिष्ठ पत्रकार निवेंदु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे थोड़ा सा सियासी मसलों पर बात कर ली जाए। निवेंदु जी, महागठबंधन की जीत को दो तरीके से देखा जा रहा है, आप क्या मानते हैं इसे? क्या ये आरजेडी की जीत है बेसिकली या जेडीयू की? यानी कि क्या ये लालू की जीत है या नीतीश कुमार की जीत है असली? ये दरअसल देखिए तो बिहार में अब तक हुए विकास की जीत है ये, और साथ ही साथ इसे अगर जीत कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि राजनीति के फरेब के खिलाफ जीत है ये। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जितने डमी लोग थे, यानी कि जो जोकर्स थे, जो मेन पॉलिटिक्स मुख्य धारा की राजनीति के लोग जीते हैं, जो लालू हैं, नीतीश हैं, जो भी हैं, लेकिन डमी जो खड़े हुए थे, जैसे पप्पू यादव हो, जीतन राम मांझी हो, ये सारे लोग हारे हैं और ये एनडीए के एलाइज के तौर पर भी एनडीए को, बीजेपी को सपोर्ट नहीं दे पाए। क्योंकि देखिए दीपक, एक बात बहुत साफ है कि जिस मांझी पर इतना श्रृंगार हो रहा था कि महादलित वोट बटोरेंगे मांझी, तो दरअसल उसकी जड़ में जाएं तो फिर ये मांझी आते कहां से हैं? आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार ने दलित महादलित का जो डिवीजन किया तो उसके बाद उनको गालियां भी सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने महादलित वोट बैंक एक क्रिएट किया, उसके नेता बनाया उसका मांझी को उन्होंने। मांझी मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अब मांझी अगर दूसरी कतार में है। ठीक उसी तरह से रामविलास पासवान, जो कभी कहते थे कि बीजेपी माथा का घाव है, आरजेडी पैर का घाव है, वैसे रामविलास पासवान को भी इस बार वोटरों ने, उनके रिश्तेदारों को भी परखा है, जाना है, हराया है। तो एक तरह से कहें कि बिहार जो हमेशा एक सचेतन, राजनीतिक तौर पर सचेतन प्रदेश है, तो इसने इस बार भी एक नया जजमेंट दिया है और आगे की दिशा भी दी है कि बिहार देश में आगे की राजनीति में भी फरेब नहीं चाहता, ड्रामा नहीं चाहता, झूठ नहीं चाहता। वो चाहता है कि सच्चे लोगों की सरकार हो और आम जन की सरकार हो, जनहित के सरकार हो, और विकास है तो विकास ही मुद्दा रहे, विकास के अलावा कुछ नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ निवेंदु जी। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महागठबंधन की जीत पर बिहार की जनता के साथ ही आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये एक खास विचारधारा की हार है। सबसे पहले मैं महागठबंधन के
कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। मोदी जी के लिए एक मैसेज है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश सबका है और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। चलिए, और निवेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त पटना से। निवेंदु जी, आप कुछ देर पहले ये बहुत सही बात आपने कही कि बिहार की जनता ने एक दिशा देने की कोशिश की है। मैंडेट तो दे दिया जनता ने, मुहर भी लगा दी है लालू और नीतीश की दोस्ती पर, लेकिन आगे का भविष्य किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों की जोड़ी? क्या अगले 5 साल, क्योंकि सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। जी दीपक जी, बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं और उन्हीं सवालों में ये सवाल भी बार बार उमड़ता घुमड़ता रहा कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या लालू नीतीश एक रहेंगे या फिर लालू दावे करेंगे कि सीएम उन्हीं का हो। लेकिन आपने देखा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें साफ तौर पर लालू ने कहा। दरअसल देखिए, बिहार की राजनीति को समझने की जरूरत है। मुझे ये लग रहा है कि जो एनडीए है या बीजेपी नेतृत्व है, जो उसकी नेशनल लीडरशिप है, उसने बिहार की पॉलिटिक्स को समझा ही नहीं। अगर उसने समझा होता तो शायद ये रिजल्ट इस तरीके से नहीं आते। समझने की बात यह है कि लालू नीतीश हैं कौन? ये लालू नीतीश वही हैं, ये जनता दल के, जनता पार्टी के लालू नीतीश हैं। ये जो कभी एक साथ थे, ये मंडल के नीतीश लालू हैं, जिसको लालू ने बाद में कहा, जब फिर से ये लोग मिले तो इन लोगों ने, तो लालू ने कहा कि ये मंडल 2 है। यानी कि इनका स्वाभाविक अलायंस है। जो यह कहा जाता रहा कि लालू और नीतीश का स्वाभाविक अलायंस नहीं है। अलबत्ता ये बात सही है कि लालू को हरा के नीतीश आए, लेकिन इनका जनाधार, इनका सामाजिक आधार वही मंडल की पॉलिटिक्स है। तो मंडल की पॉलिटिक्स पर एक बार फिर ये इकट्ठे हुए हैं, महागठबंधन है जो और बड़ा विस्तार इसको पाना था। दूसरी बात आप देखें दीपक जी कि साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जहां इनकी कमी थी वहां इन्होंने कांग्रेस से पूरा किया। कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक, उसका जो अपर कास्ट वोट बैंक, उसको उन्होंने लिया और फिर ये मंडल का वोट बैंक। साथ साथ इसी मामले में इंजीनियरिंग के तौर पे, सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे नीतीश कुमार ज्यादा बड़े इंजीनियर साबित हुए और लालू सोशल इंजीनियरिंग का, लालू उनके साथ रहेंगे। इस सोशल इंजीनियरिंग का निवेंदु जी कोई चारा भी नहीं है। नहीं निवेंदु जी, इस सोशल इंजीनियरिंग का मैं बीच में ही सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस का क्योंकि जिक्र आया है, इस सोशल इंजीनियरिंग का कांग्रेस को कितना फायदा हुआ? 4 सीटों से आज 20 सीटों पे लीड कर रही है कांग्रेस, अभी 5 सीटें जीत चुकी है, यानी कि 25 सीटें आ रही हैं, यानी कि एक लंबी छलांग लगाई है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, बहुत लंबी छलांग लगाई है। वही मैंने कहा कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद का भी अलायंस रहा पिछले दिनों। जब अलायंस रहा तो जीता भी उन्होंने ज्यादा। जब अलायंस उन्होंने तोड़ा था तो इसके पहले का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में उन्होंने हार का मुंह भी देखना पड़ा। तो एक ये अलायंस बनता है कि फॉरवर्ड वोट, अगर सोशल इक्वेशन के हिसाब से समझे तो फॉरवर्ड वोट, बैकवर्ड वोट, अपर कास्ट वोट, एक्स्ट्रा बैकवर्ड वोट, साथ साथ ये, तो इस तरीके से ये सारी गोलबंदी, कांग्रेस का भी जनाधार जो रहा है वो उसमें मुसलमान शामिल रहे हैं, लालू के जनाधार में वो शामिल रहे, नीतीश के भी शामिल रहे। तो ये सब एक जगह जो आया है, शायद ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि आगे हम पॉलिटिक्स करेंगे, तो शायद आगे वो दिन भी देख सकता है हिंदुस्तान कि जब शायद ये कांग्रेस इस हालत में न हो, तो शायद 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो निसंदेह पीएम कैंडिडेट के तौर पर शायद नीतीश कुमार सामने आए। और इस बार के बिहार चुनाव ने इस बात को भी एक अलग जगह दिया है।
यानी कि आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तो कि कांग्रेस को तो 2019 बहुत के फायदा चुनाव हुआ, में 4 से 14 सीटों पर पहुंची कांग्रेस। अब शायद यहां से एक नए तरीके से अपनी रिवाइवल के बारे में सोचेगी। आपकी बातों से एक हिंट जरूर मिली है भविष्य की, और वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा यदि 2019 तक कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का ये गठबंधन इसी तरह से चलता है, इसी तरह से दोस्ती बरकरार रहती, तो जैसा आप कह रहे हैं कि नीतीश हो सकता है कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर का एक फेस हो। वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।